You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6, 3rd edition, New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of unit number 9, which name The Wolf Children 1. Exercise की तरफ बढ़ते हैं. Exercise consists of many parts. First of all, comprehension में 3 टाइप के क्वेश्चन है जिसके मैं नोट बना चुकी हूँ और आपसे शेयर करूँगी. नेक्स्ट पेज पे बी है वर्किंग विद वर्ड्स, और जो काम बुक में करने का है उसे मैं बुक में सॉल्व कर चुकी हूँ. सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, इसके भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ. प्रोनाउन और प्रोनाउंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे है और जो कि मैंने सॉल्व किए हुए हैं. और नेक्स्ट है होमोफोन्स, डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और लास्ट में है कंपोजिशन में 3 क्वेश्चन है, तीनों ही मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. मीन्स एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स. आंसर देखें. लिक्ड सेकंड फॉर्म है और लिक्ड का मतलब है चाटा. आंसर लिखिए. वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स बिकॉज ही वॉज नर्वस एंड हिज लिप्स वर ड्राई विथ फ्राइट. जब कोई शख्स नर्वस हो जाता है, डर जाता है, तो उसके लिप्स ड्राई हो जाते हैं. तो आदमी जो है वो अपने लिप्स क्यों लिक्ट कर रहा था, यानी खौफ की वजह से, नर्वस होने की वजह से वो अपने लिप्स को जो कि ड्राई हो चुके थे लिक्ट कर रहा था. Why does the author says that demons बोलते हैं शैतान को. Lived in the anthill. People knew they were not wolves but did not know what they were, so they called them demons. Write down 4 sentences लिखें from the first part of the passage के start के part से. which tell you जो कि बताता है that it's evening कि ये शाम है. आंसर लिखें. now in the gathering twilight. next sentence लिखें. sunset was torn for the demons to appear. the forest was bathed in a deep red glow from the sun. the first of the large fruit bats flapped past the waiting man. D question. How do we know that Mr. Ali kept a diary of some sort? Answer लिखें. Mr. Ali made notes, so we know he kept a diary of some sort. Sort का मतलब है तरतीब. How did Mr. Ali know that the children had been living with the wolves for a long time? कैसे मिस्टर अली को पता चलता है कि जो चिल्ड्रन हैं लंबे अरसे से बच्चे जो हैं वो वुल्स के साथ यानी भेड़ियों के साथ रह रहे हैं. आंसर लिखें. मिस्टर अली न्यू दैट चिल्ड्रन हैड बीन लिविंग विद द वुल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज बोथ रन ऑन ऑल फोर्स. नेक्स्ट एफ क्वेश्चन है व्हाई डिड द विलेजर रिफ्यूज टू हेल्प. विलेजर ने हेल्प को क्यों मुस्तरद किया. The villager refused to help because they believed that evil spirits, not the children, were in the wolf's home. Evil spirits शैतानी रूहों को बोलते हैं. Believed का मतलब है यकीन. Why did the hunting party beat the ground in front of them? आंसर लिखें. The hunting party beat the ground to frighten the wolves out of their lair. H question है why did Mr. Ali feel bitter and angry with himself? Mr. Ali was bitter. bitter का मतलब है तलख, and angry का मतलब है खफा. angry with himself, वो अपने आप से गुस्से में इसलिए था because she wolf had been killed and he had not been able to protect her. The wolf children were likely to have been very frightened when they were dug out of the lair. This question is more challenging. Discuss it first. Which parts of the passage create a of suspense and how? Make your own observation. आप अपनी observation से बताएं and then share them, और फिर share करें with the other in class. The following part of the passage creates a sense of suspense. Number 1 point लिखें. They had heard their horns and their strange yelping cries. Strange यानी अजनबी, yelping का मतलब ही है चीखना, और हॉर्न्स का मतलब है शिकारी जानवर. Suddenly there was a movement in the narrow entrance of the anthill. Then something else emerged. It was a lemon, just as the villager had said, half human and half animals. Last point लिखें.
The lemon was followed lay a second monster much smaller than the first. Both of the creatures had matted hair which covered their faces and both walked on all fours. Matted hair का मतलब है धुंधला हुआ यानी गर्द आलूद बाल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Explain the italicized words and phrases in your own words. Italicized का मतलब है तिरछा. यहाँ पे जो तिरछे वर्ड्स दिए गए हैं इनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. It was on this that the man's attention was focused. Attention was focused को एक्सप्लेन करना है. तो आंसर लिखें attention was focused. Focused is a word generally used with cameras and taking photographs. When something some thing thing is in focus, it is clear and detailed. Next sentence है forest was bathed in a deep red glow from. Bathed is used in a metaphoric sense. We generally bathe in water. Here the whole sense is floated with light from the setting sun. It is a good word to use in this context as we get a clear picture of what it was like. The man on the platform stiffened became apprehensive. Apprehensive का मतलब है खौफज़दा. Showing they were scared, ready, alert and uncomfortable. She arched her back and bared her teeth. Bared her teeth showed, revealed are her teeth by pulling back her lips. और ब्रैकेट में लिखें like an angry animal's warning of an enemy. Next question. Question number 3. Answer the following question with reference to context. हम ये सेंटेंस दिया गया है और ये क्वेश्चन इस ही सेंटेंस से रिलेटेड है. फर्स्ट क्वेश्चन है Who made the signal? आंसर लिखें मिस्टर अली. बी क्वेश्चन है Why did the person and to whom was he making the signal? आंसर है 2 men, part of a group of 5 who agreed to go with Mr. Ali. सी क्वेश्चन है What had occurred just before this? 2 feral children, demons and some wolves have come out of Wall's lair. D question है What did the person do after he made the signal? आंसर लिखें He wrote in his notebook. नेक्स्ट पेज पे है B. Working with word. लफ्ज़ों के साथ काम करना. MR is an abbreviation for the word Mr. जहाँ MR यूज़ होता है इसका मतलब है ये एब्रीविएशन है किसका? मिस्टर का. डू यू नो व्हाट दीज एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर? यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. इन वर्ड के एब्रीविएशन का हमने बताना है. तो APR किसका एब्रीविएशन है? अप्रैल. इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी. APR किसका मुखफ़फ़ है? यह एब्रीविएशन है अप्रैल. ASST असिस्टेंस, ब्रदर. सर्टिफिकेट दिसंबर. डिप्लोमा डोजन, February. जुलाई मंडे. प्रोफेसर सैटरडे. सोसाइटी यूनिवर्सिटी. मिसलेनियस. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. इन वर्ड्स को हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. नोट्स की तरफ चलते हैं. कॉशियसली का मतलब है एहतियात से, होशियारी से. और सेंटेंस बनाए शी वॉकड कॉशियसली अक्रॉस द आइसी पाथ. नर्वसली बेचैनी से. ही टैप्ड his foot nervously while waiting for the interview. Actually, I actually enjoy reading in my free time. Courageously, she courageously faced her fear of heights and went skydiving. Furiously, the wind howled furiously during the storm. आगे है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. आपने ये इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेना है. चेंज दीज सेंटेंसेस टू देयर नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पेरेटिव फॉर्म्स. यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पेरेटिव फॉर्म में चेंज करना है. सिट डाउन ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव इम्पेरेटिव में लिखें डोंट सिट डाउन. डोंट लिसन टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग. सेंटेंस लिखें लिसन टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग. Don't eat healthy food.
Eat healthy food. Eat some snack. Don't eat any snacks. Binomial pairs. A binomial pair is an expression containing two words. Binomial pair वो expression है जिसमें दो words joined by conjunction. Conjunction के ज़रिए वो word आपस में जुड़े हुए होते हैं. Usually कौन से word conjunction के use होते हैं? And, और. इन दो words के join करने से binomial pair बनते हैं. For example, here and there, back and forth, black and white, etc. अब इसी से मुतालिक ये क्वेश्चन दिया गया है. Choose the correct binomial pair from the box for each sentence below. हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, binomial pair दिए गए हैं और नीचे सेंटेंस दिए गए हैं. इन ब्लैंक में हमने जो suitable binomial pair होगा उसकी पुटिंग करेंगे. I am dash of my neighbors playing making such a noise every day. I will call the police. First blank में लिखें sick and tired. Second sentence है you don't have to shout. I can hear you dash loud and clear. Third sentence the poems she writes are always dash and not long or boring, short and sweet. I walked up and down the street trying to find my friend's house. Next page. C. Learning about language. Learning about language में सबसे पहले दिया गया है verb. A transitive verb is one of that required an object to complete its meanings. Transitive verb वो verb है जिससे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि I love ice cream. और an intransitive verb does not need an object to complete its meanings. और intransitive verb वो verb है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है. Use the following verb transitively and intransitively in sentences of your own. हमें ये वर्ड दिए गए हैं, हमने इनकी intransitive sentences भी बनाने हैं और intransitive sentences भी बनाने हैं. हमें एग्जाम्पल भी दी है, जैसे कि flies ये एक वर्ब है. वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं एक्शन को, काम को. The pilot flies an aeroplane ये transitive है. The aeroplane flies ये intransitive verb है. हमने इन वर्ड्स के भी सेंटेंसेस बनाने हैं. सबसे पहले वर्ड है राइड्स. शी राइड्स हर बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी मॉर्निंग ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है. द लिटिल गर्ल लव्स टू राइड ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट वर्ड है चार्ज्ड. द चार्ज हिज फोन ओवरनाइट ट्रांजिटिव सेंटेंस है. द बैटरी इज चार्जिंग इनट्रांजिटिव सेंटेंस है. रेस्ट शी रेस्टेड हर हेड ऑन सॉफ्ट पिलो ट्रांजिटिव सेंटेंस है. After a long decided to rest intransitive sentence है. Next word है played. They played a thrilling game of chess. Transitive sentence है. The children played in the park. Intransitive sentence है. और last word है is stopping. The bus driver is stopping at the next bus stop. Transitive sentence है. The bus is stopping soon. Intransitive sentence है. Next question की तरफ चलते हैं. Noun. Supply suitable noun which can be described by these adjectives. यहाँ हमने suitable noun लगाने हैं. A humid. Suitable noun लिखें green house. A mature cheese. CHEESE cheese. A powerful engine. ENGINE engine. An adhesive glue. GLUE glue. इसका मतलब है चिपकना. और next word है an excessive amount. AMOUNT amount. Technology. TECHNOLOGY technology. An ancient ruin. RUIN. A spectacular sunset. A defective computer. COMPUTER. Students आपने relative pronouns के ये वर्ड अच्छे से याद करने हैं. possessive pronouns के ये वर्ड्स और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के ये वर्ड अच्छे से याद कर लेने हैं. जब आपको ये वर्ड्स याद होंगे तो आपको आगे आसानी होगी. क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन टू कंबाइन दीज सेंटेंसेस. यहाँ इन सेंटेंसेस में आपने सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है. द बस टुक द चिल्ड्रन टू द सिनेमा. द सिनेमा वॉज इन द टाउन. सिनेमा को अगेन यहाँ यूज़ नहीं करना. सिनेमा की जगह आपने लिखना है विच. These are happy boys. Their painting were displayed in the exhibition. Their की जगह आपने लिखना है whose.
या आगे भी मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए तो फर्स्ट सेंटेंस में विच आएगा, सेकंड सेंटेंस में हुज आएगा। दिस इज़ आसिफ, आसिफ इज़ अ गुड पियानिस्ट। आसिफ की जगह आपने हु लगाना है, हु। वी वेंट टू सी द पेशेंट हैड मलेरिया। द पेशेंट को हटा के आपने हु लिखना है, WHO, हु। नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी द नाइफ, आई बॉट द नाइफ येस्टरडे। आई को नहीं हटाना यहाँ पे, बल्कि सिर्फ लिखना है, ये फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पे आपने लिखना है दैट आई बॉट द नाइफ येस्टरडे। सकीना इज़ द गर्ल, फुल स्टॉप हटा के आपने लिखना है हूम। आई स्पोक टू यू अबाउट सकीना, WHOME, home. Put suitable relative pronouns in the blank spaces below. आपने लिखना है who. The eggs dash we bought yesterday were all wet. That we bought, THAT, that लगाना है। The boy dash leg was broken left the hospital today. Whose, WHOSE, whose. This is the kind of table that, THAT, that। आगे लिखना है the person dash the police arrested, यहाँ लिखना है whom, WHOM, whom। We used to show possession when something belonged to someone. We can also use possession pronouns for things which are not alive. We do not use s. Often we use of the instead. Use suitable word and punctuation to complete the following sentences. Discuss them first. Use suitable word. कोई suitable word लगा के या punctuation का ऐड करके हमने इन ब्लैंक को फिल करना है। The book are dash. The book are mine, MINE, mine. It is dash house. It is their house, THEIR, their. The cat licked dash paw. It's ITS, its. This is dash bag. This is Rahila's bag. It's my dash coat. It's my mother's, MOTHE, comma लगाएं, S, mother's coat. The legs dash table are brown. Off the table. The door dash building was open. Off the building was open. Homophones. Homophones are words that sound the same. Homophone वो अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन इनकी मीनिंग और इनके स्पेलिंग चेंज होते हैं। Use the following in sentences of your own to show that you know the meaning of the both words. In each pair say the words aloud. आपने इन वर्ड्स को जब आप अलाउड यानी ज़ोर से पढ़ेंगे तो आपको इनके साउंड एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन ये स्पेलिंग भी इनकी चेंज है और इसकी मीनिंग भी चेंज है। देयर का सेंटेंस लिखें, देयर कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, THERE, देयर का लिखें। आई लेफ्ट माई कीज़ और देयर ऑन द टेबल। वियर का मतलब है पहनना। ही वियर ब्लैक कोट। वेयर का मतलब है कहाँ। वेयर आर यू गोइंग। रेन का मतलब है लगाम, वो जो घोड़े का लगाम जो होता है उसको रेन इंग्लिश में बोलते हैं। होल्ड द रेन फ्रेमली, यानी मजबूती से लगाम को पकड़ो। टू कंट्रोल द हॉर्स। रेन का मतलब है राज। द किंग रेन वॉज लॉन्ग। सेंट खुशबू को कहते हैं। द सेंट ऑफ द फ्लावर्स फिल्ड द गार्डन। और SENT, सेंट का मतलब है भेजना। आई सेंड यू अ बर्थडे कार्ड। फेयर बोलते हैं मेले को, FAIR, फेयर का मतलब है मेला। द फेयर हैड गेम्स, राइड्स एंड फूड। FARE, फेयर का मतलब है किराया। हाउ मच इज़ द बस फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन D है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। से दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड को आपने ज़ोर से पढ़ना है। ईच वन हैज़ एटलीस्ट वन साइलेंट लेटर, हर वर्ड के पास कम से कम एक जो लेटर है वो साइलेंट है। लर्न टू स्पेल दीज वर्ड्स, ये कॉम है, कॉम बी नहीं पढ़ते, बी जो है ये साइलेंट है। टॉम में बी साइलेंट है, थम में बी साइलेंट है। स्कम का मतलब है दम तोड़ना, इसमें भी बी साइलेंट है। रेन जी साइलेंट है। थाई में GH, ये दोनों जो लेटर हैं ये साइलेंट है। रीसाइन में जी साइलेंट है। नो में एन से पहले जब के आ जाए तो वो हमेशा साइलेंट होगा। नाइफ में के साइलेंट है। नो में भी के साइलेंट है, के साइलेंट है। और यहाँ भी एन से पहले के आया है तो के साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर सम कॉमन सेइंग, थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ ईच। यहाँ पे जो वर्ड हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं इनकी मीनिंग के बारे में सोचें। ईच चूज़ वन एंड इन योर ओन वर्ड,
सी व्हाट यू थिंक इट मीन्स। यहाँ मैंने सबकी मीनिंग लिखे हुए हैं। और टू बी एज फिट एज फिडल, इसकी मीनिंग है टू बी इन ग्रेट फिजिकल हेल्थ, यानी बहुत अच्छी सेहत के लिए क्या यूज़ होता है, टू बी एज फिट एज अ फिडल। टू बी एट अ लूज एंड, इसका मतलब है टू हैव टाइम्स विद नो स्पेसिफिक प्लान, यानी टाइम होने के बावजूद कोई प्लानिंग नहीं होती है, अच्छी प्लानिंग नहीं होती है। टू बी ऑन, यानी टाइम को इस्तेमाल की कोई अच्छी प्लानिंग ना होने को के लिए क्या यूज़ होता है, टू बी एट अ लूज एंड। टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सक्सेसफुल। टू बी रोटेट टू द स्पॉट, इसका मतलब है टू बी अनएबल टू मूव ड्यू टू सरप्राइज और शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है कंपोजिशन। कंपोजिशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और मेरी ये वीडियोस अगर आपके काम आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। कंपोजिशन में है पैराग्राफ स्ट्रक्चर। लुक एट दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को देखिए फ्रॉम द पैसेज, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ, और पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को देखिए। यूज दिस क्वेश्चन टू हेल्प देम। What is the main idea topic of the paragraph? मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ का? विच पार्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल, किस पार्ट में एक्स्ट्रा डिटेल दी गई हैं? हाउ कुड दिस पैराग्राफ बी रिटन एज वन सेंटेंस, इस पैराग्राफ को एक सेंटेंस में कैसे लिखा जा सकता है? What additional information could be added to the paragraph, और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में ऐड हो सकती हैं? Which words and details make the paragraph exciting and interesting to the reader? पढ़ने वाले के लिए इस पैराग्राफ को मज़ीद एक्साइटिंग और दिलचस्प बनाने के लिए और क्या, कौन से वर्ड या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? How might this paragraph be written differently if it was a formal police report or newspaper article instead of the story? स्टोरी के बजाय इस पैराग्राफ को कैसे डिफरेंट यानी मुख्तलिफ लिख सकते हैं? फॉर्मल पुलिस रिपोर्टर या फिर कोई अखबार का कोई आर्टिकल के तौर पे अगर हम इस पैराग्राफ को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? मैं इस हर क्वेश्चन के अलग अलग आंसर लिख चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। कंपोजिशन का आंसर है मेन आइडिया या टॉपिक। इनकाउंटरिंग स्ट्रेंज क्रिएचर्स एंड कन्फर्मिंग देयर एग्जिस्टेंस। कन्फर्मिंग का मतलब है तस्दीक कर रहा है। एक्स्ट्रा डिटेल में लिखें रिएक्शन एंड एक्शन ऑफ द 6 men। वन सेंटेंस समरी में लिखें 6 men saw strange creatures, had different reaction but all ended up believing in them. Additional information to make it more interesting, they could describe the creatures, where they were and how they got there. E question, different writing for a report या articles. If it were a formal report or news story, it would be more straightforward, focused on facts and less about how the men felt. Next page पे 2 number question है rewrite the paragraph in example 1 as the section of a formal report. Use sequence markers first, next, then, finally, etc. to structure your report. इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है लेकिन इस सीक्वेंस को यूज़ करते हुए, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन और फाइनली वगैरह को यूज़ करते हुए अगेन पैराग्राफ को लिखना है। आंसर की तरह चलते हैं। आंसर को थोड़ा मैंने शॉर्ट करके लिखा है। फर्स्ट द 6 men approached, next 2 raised there at the strange creatures, then 1 signaled not to shoot and began documenting. Afterward, 1 man, comma लगाए, 2 frightened, covered his face. Finally, they confirmed the stories they had been the monsters themselves. Third और last question है write a paragraph or two explaining how the girls came to be in the wolf lair. Before you start, plan your paragraph. Decide whether your paragraphs are part of a story or a report. Remember to begin with a topic sentence that states your main point. Make sure that the additional sentences develop and explore that point. Think about the order of the sentence and the information of them. Use these questions to help you gather some ideas. अब जो हम पैराग्राफ राइट करेंगे वो इन क्वेश्चंस के बेस पे होने चाहिए, यानी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं तकरीबन इनके आंसर हो उस पैराग्राफ में।
ये पैराग्राफ भी मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ और काफ़ी शॉर्ट सा लिखा है मैंने। आमना एंड सारा कॉमा लगाएं। 2 sisters aged 10 and 12 lived near a large forest. They were adventurous sisters. On a fateful summer afternoon, they went into the forest. They got lost, and when they called for help, some wolves heard them and brought them to their den. That's how the girls ended up in the wolves' home. इस वीडियो में यूनिट नंबर 9 की फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 10 द वोल्फ चिल्ड्रन 2 की फुल एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।